Students, in the last topic we have discussed about the types of topologies, which are discrete, indiscrete, and cofinite topology, then usual topology, lower limit topology, okay, and so on. Now today our topic is ordering to topology. Ordering to topology, if there are two topologies, one is contained in the other, then we say that if one first topology is greater than the second, and that is contained in the second is contained in the first, then the first topology is said to be stronger topology. For example, it is a definition, then we give example. Let X be any non-empty set and let T1 and T2 any two topologies where T1 is greater than where T1 first topology is greater than the second topology, greater than equal to second topology. Then we say that these are this is the T2 is contained in, it can be written as T1, ठीक है, T1 में contained in है T2. Then we say that T2 is a weaker topology and T1 is a stronger topology, ठीक है. Then we say T1 is stronger, ठीक है. First topology T1 is greater than T2 and T1 में T2 is contained in, okay. Now T1 is called stronger topology, ठीक है. T1 is called stronger topology and T2 is called, T1 जो है वो stronger topology है और इसे कहते हैं फाइनल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, और इट इज कॉल्ड फाइनल टोपोलॉजी. स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी और stronger topology or it is called finer topology. Whereas T2 is called weaker topology. Okay, T2 is called weaker topology and it is also called bigger topology. Okay, it is also called weaker topology. This is called, T1 is called stronger topology, bigger topology, finer topology, and T2 is called weaker topology or we can say smaller topology, weaker or smaller topology, ठीक है. If X be a non-empty set, if T1 T2 be any two topologies where T1 is greater than equal to T2 and also T2 is contained in T1, then we say that T1 is a stronger, finer or bigger topology and where T2 is called a weaker, smaller topology. Next is comparable and non-comparable topologies. Comparable and non-comparable topologies. Let X be non-empty set and T1 T2 are the two topologies. Let X be any non-empty set and T1 and T2 be two topologies. Maybe these can be comparison between two topologies, T1 and T2 be any two topologies.
दीज आर कंपेरेबल। कंपेरेबल उन दोनों को कैसे लिखूँ, मतलब ये कंपेयर करते हैं if and only if T1 it is contained in equal to T2 and T2 is contained in equal to T1. First topology contained in equal to second topology is contained in equal to first topology. Then these are called comparable topology. And और इसमें क्या कि otherwise if T1 does not containing T2 and T2 does not contain in T1, then these are called non-comparable topologies. Then non-comparable topologies. ठीक है, X be a non-empty set. T1 T2 are two topologies. If first topology contained in the second contained in first, then these are comparable. Otherwise, these are non-comparable. Here is an example. Let X is equal to मानते हैं, उसमें हमारे पास है एलिमेंट्स A, B and C. X में ले लिए हमने A, B and C. Now T1 ले लिए हमने topologies में empty set है, एक ले लेते हैं A set and next is X set. उसके बाद T2 ले लिया, T2 that is equal to उसमें empty set B set, उसके पावर सेट में X आ गया. अगला है हमारे पास T3. मान लो T3 में empty set है, A है, B set और A comma B and X, right? A हो गया and B and X. Now comma X. These be three topologies on X. As T1 is equal to phi A comma X and we take T2 is equal to phi empty set B and X. फिर हमने T3 को topology ली, T3 that is equal to phi A B comma A and B and X. अब हमने चेक करनी है कि these are comparable or not. Okay. Now firstly हमने देखा T1 जो है topology if it contains in T1 topology T2 में है कि नहीं, पूरे उसके एलिमेंट्स नहीं है पूरे, तो क्या लिखेंगे T1 is not containing, क्या आएगा T1 is not containing T2. ठीक है, सेकेंडली चेक करो T2 containing है T1 में, it is not containing T1. ठीक है, that means these twos are not comparable, these are non-comparable. These are non-comparable topologies. T1 and T2 are non-comparable topologies. ठीक है, T1 T2 are non-comparable topologies. अब आगे देखो T1 ले लो और T3. T1 और T3 को लेके चेक करो. T1 के पूरे एलिमेंट्स हैं, इसमें A भी है X भी है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चेक किया हमने T1 इट इज कंटेन्ड इन T3 एंड उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट T2 को चेक करो, T2 भी है T3 में, आल्सो T2 इट इज कंटेन्ड इन T3. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इधर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर T1 एंड T3 these are comparable. T1 and T3 are comparable क्योंकि T1 contained in equal to T3 है और also T2 contained in equal to T3. तो दोनों को देखो, हमने कंपेयर दोनों को किया, T1 T3 are comparable, here T2 and T3 are comparable, T2 T3 comparable, T1 T3 comparable. Therefore we can write
T1, T3 are comparable topologies. And T1, T3 हो गया, and T2, T3. T2 and T3 are comparable. Okay. Next example is prove that lower topology lower limit topology on R is a set of real numbers. Prove that lower limit topology on R is stronger than usual topology. So, prove that lower limit topology on R is a set of real numbers, is stronger than usual topology. That means first topology is contained in a second. Okay, the first topology is less than equal to, or first topology greater than equal to the second, and also second contained in the first. तो ये प्रूफ कर देंगे. तो ये जो हमने प्रूफ करना है, ऐसे लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, इसको हमने स्ट्रॉन्गर प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करेंगे कि ये टोपोलॉजी जो है इससे ग्रेटर देन है. ऑल्सो सेकेंड टोपोलॉजी जो कि यूजुअल टोपोलॉजी है आर पे रियल नंबर में, वो इसमें कंटेनिंग है. ये प्रूफ कर देंगे, देन वी गेट द रिजल्ट. तो पहले मान लेते हैं लेट T1, T2 are two topologies. Let T1 and T2 are the two topologies on R, where T1 जो है इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है इसको स्ट्रॉन्गर प्रूफ करना है, तो इसको T1 मान लेंगे, बिकॉज इसको हम ग्रेटर देन प्रूफ कर देंगे, T2 से ग्रेटर देन. नाउ T1 मान लेते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले अच्छी तरह इसके लिए डेफिनेशन लिख लेंगे. क्या है इसके मुताबिक में टोपोलॉजी क्या बन जाती है, वेयर T1 that is equal to A which is contained in R such that there exists an open interval such that semi-open interval AB such that x belongs to A, B contained in A, x belongs to A, B, okay, which is contained in A union with phi. ये हमारी डेफिनेशन होगी लोअर लिमिट टोपोलॉजी. डेफिनेशन ऑफ लोअर लिमिट, वही हमारी डेफिनेशन लिखते हैं, वो उसको यूज करेंगे. नाउ सेकंड T2 हमने मान लिया, T2 इज इक्वल टू द T2 मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R. दैट इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R सच दैट. तो इट मीन्स यहाँ पे हमने x की जगह पर क्या सेट लेना है, R. Therefore T2 that is equal to A which is contained in R such that for all x belongs to A there exists an interval. अब यहाँ पे देखो यूजुअल टोपोलॉजी में क्या ओपन इंटरवल होगा. There exists an open interval A, B such that x belongs to open interval AB such that x belongs to open interval AB that is contained in A union with the phi. ठीक है, दोनों की डेफिनेशन हमने यूज कर ली है इस क्वेश्चन में, यूजुअल टोपोलॉजी एंड द लोअर लिमिट टोपोलॉजी. Now to prove that first topology is
फर्स्ट सेकंड टोपोलॉजी इज कंटेन इन द फर्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज T2 इज कंटेन इन T1, ये प्रूव करना है T1 कंटेन इन T2। तो इसके लिए हमने पहले क्या मान लेते हैं कि मान लो T2 को कोई एलिमेंट जैसे A सेट है, मान लेते हैं कि वो किसको बिलोंग कर रहा है T2 को, बी एनी मेंबर, लेट A belongs to T2 be any member। अगर T2 को बिलोंग कर रहा है तो T2 हमने क्या माना था, यूजुअल टोपोलॉजी, T2 हमने क्या माना था, यूजुअल टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी की जो अगर सेटिस्फाई करेगा सारी उसकी प्रॉपर्टी जो टोपोलॉजी की है T2, तो वो वैल्यू इसमें प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नाउ A बिलोंग्स टू T2 be एनी मेंबर, अगर हम मान लेते हैं फर्स्टली A एम्प्टी है, ठीक है, अगर तो ये एम्प्टी है, साथ साथ में इसकी डेफिनेशन देख लेंगे क्या है। अगर ये एम्प्टी सेट के बराबर है तो इट मीन्स दैट A बिलोंग्स टू T1, क्योंकि जो T1 टोपोलॉजी है हमने शुरू में मानी ना लोअर लिमिट टोपोलॉजी, उसमें भी एम्प्टी सेट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो A है हमेशा किसको बिलोंग करेगी, T1 को। मान लिया T2 को बिलोंग करती है, किसको हमने प्रूव कर देना, A मेंबर किसको बिलोंग कर रहा है, T1 को। उसके लिए फर्स्टली हमने मान लिया कि मान लो कि ये एम्प्टी है, अगर कंडीशन लगाते हैं कि एम्प्टी सेट है, तो क्योंकि डेफिनेशन ऑफ यूजुअल में भी और लोअर में दोनों में एम्प्टी सेट है, इट मीन्स माना हमने यूजुअल का, लेकिन हमने बना किसके देना है, बिलोंग करता लोअर लिमिट, तो इट मीन्स A किसको बिलोंग करता, ले लिया T1 को। और दूसरा है कि इफ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट देन, अब देखो यूजुअल की टोपोलॉजी की डेफिनेशन मिली क्या था, वो T2 की वैल्यू A विच इज कंटेन इन X सच दैट फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट देयर इज एन ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, क्या था वो ओपन इंटरवल A, B सच दैट X बिलोंग्स टू A, B विच इज कंटेन इन A, ये था। साथ में क्या था, यूनियन विद द एम्प्टी सेट, ये थी हमारी T2 की डेफिनेशन यूजुअल टोपोलॉजी की। अगर देखो A एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, इसे देखो अगर A इज नॉट बिलोंगिंग टू द एम्प्टी सेट तो इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले सेट में जो X बिलोंग्स टू A, B कंटेनिंग इट, दैट मीन्स देयरफॉर A बिलोंग्स टू, ये क्या आ जाएगा, A बिलोंग्स टू द T2 तो कर ही रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर X बिलोंग्स टू A, B, ये आ गया विच इज कंटेन्ड इन A, ठीक है, विच इज कंटेन्ड इन A। नाउ अब हमने इसको रिलेट कैसे करना है, T1 से रिलेट करना है, देयर इज एन ओपन इंटरवल A, B सच दैट विच इज कंटेन्ड इन A। इसी को हमने कॉन्सिक्वेंस बना लेना है कि X बिलोंग्स टू, अगर मान लेते हैं कोई X, B एक हमने मेंबर ले लिया, कोई इसमें X के साथ में मेंबर ले लिया X, B विच इज कंटेन इन, वो किस में कंटेन इन E और B, E और B का हमने एक मेंबर ले लिया X, B, ठीक है, विच इज कंटेन इन AB, और AB किस में कंटेन इन आ गई, A में। समझ आ गया, पहले हमने X ले लिया, X बिलोंग करेगा X की तरफ जो है क्लोज ब्रैकेट है कि X की वैल्यू ले लिए, B की तरफ ओपन ब्रैकेट, इट मीन्स हमने इसको इसे रिलेट कर दिया कि AB के पहले एक मेंबर ले लिया X, B विच इज कंटेन इन A, B एंड AB किस में कंटेन इन है, आगे A में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसको अगर हटा दें बीच में तो क्या आ जाता है, ये X बिलोंग्स टू X A की जगह पर तो ये बन गया हमारा A, B विच इज कंटेन इन A, या फिर इसको ऐसे लिख लो X, B इसकी तरफ ओपन इंटरवल हो गया, X बिलोंग्स टू इसकी जगह पर हो जाएगा A विच इज कंटेन इन A, ओके। तो इसकी जगह पर हमने X की जगह पर A ले लिया, X बिलोंग्स टू, देन वी गेट X बिलोंग्स टू semi open interval X, B which is contained in A, B and contained in A, then we get X belongs to semi open interval which is contained in A. This satisfies the definition of the T1, that is the lower limit topology. Therefore according to that क्या बनना है, for all X belongs to A
x belongs to A, there exists, क्या बन रहा है, for all x belongs to A there exists an interval x comma b, there exists an interval x comma b such that x belongs to the interval, x belongs to the interval which is contained in A. तो ये T1 की जो डेफिनेशन है लोअर लिमिट टोपोलॉजी को सेटिस्फाई करता है। नाउ उसके अकॉर्डिंगली क्या बनना कि अगर ये कंटेनिंग ए आ जाता है दैट मीन्स ए किसको बिलोंग कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ए किसे बिलोंग करेगा, T1 को। ठीक है, माना हमने पहले क्या था, ए बिलोंग्स टू, लेट ए बिलोंग्स टू T2। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए बिलोंग्स टू T1। इसको करेंगे सेकेंड इक्वेशन। फर्स्टली जो हमारे पास रिजल्ट आया था ए बिलोंग्स टू, जो हमने माना था ए बिलोंग्स टू T2, इसको हम कह लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ए बिलोंग्स टू T1 जो हमारा है इसको सेकेंड इक्वेशन, ए बिलोंग्स टू T2 जो हमने शुरू में माना था। लेट दिस, ये दोनों से क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा T1, क्या हम T2 प्रूव करना, T2 इज कंटेन इन T1 और कैन बी रिटन एज, ठीक है, T2 इज कंटेन इन T1 एंड आल्सो इससे क्या पता चला कि दीज आर कंपेरेबल एंड T2 इज कंटेन इन T1, तो T1 क्या बन जाती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, T2 इज अ दैट इज द वीकर टोपोलॉजी। यही प्रूव करना था हमने। तो T1 पहले हमने माना क्या था, देयरफॉर लोअर लिमिट टोपोलॉजी is stronger than usual topology। T2 को हमने क्या माना था, यूजुअल टोपोलॉजी, T1 को क्या माना था हमने, यूजुअल टोपोलॉजी, T2 क्या माना था, लोअर। तो दैट मीन्स लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज स्ट्रॉन्गर देन द यूजुअल टोपोलॉजी। Proper subset of cofinite space is closed if and only if it is finite। तो हमने प्रूव करना है, फर्स्टली इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले हम मान लेंगे क्लोज है तो फाइनाइट प्रूव कर देंगे, कोफाइनाइट स्पेस का प्रॉपर सबसेट जो है उसको पहले प्रूव कर देंगे। मान लेते क्लोज्ड है तो फाइनाइट प्रूव कर देंगे। दूसरी बार कन्वर्सली क्या मानेंगे, फाइनाइट है तो दैट इज क्लोज। तो इसमें हमने कोफाइनाइट स्पेस की डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करना है, इसको यूज करना है। क्या है कोफाइनाइट स्पेस में होता है कि x इज इनफाइनाइट सेट, x इज इनफाइनाइट सेट एंड उसमें टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी दैट इज इक्वल टू A कंटेन्ड इन x। टोपोलॉजी क्या होती है, A कंटेन्ड इन x सच दैट A कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट set T is equal to A contained in X such that A complement is a finite set, A complement is a finite set जो साथ में क्या आएगा, union with the empty set। okay, union with the empty set। now let A be any non empty set और इसमें proper सबसेट दिया हुआ है, x comma t be the cofinite space, let x comma t be cofinite space। अगर ये cofinite space x comma t be cofinite space तो according to the definition x is infinite, तो क्या होगा, therefore x is infinite set। ठीक है, x infinite set है और A क्या है, A भी A is any proper subset, A is any proper subset of X। Let's अब देखो इसमें पहले हम मान लेंगे कि क्लोज्ड है, पहले हम क्या मान लेंगे, क्लोज्ड है, A is a closed set, तो उसको क्या प्रूव कर देंगे, that is fundamental। Let A be any closed set।
नाउ ए इज अ क्लोज सेट, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर मान लेते हैं कि ए क्लोज सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने पहले एक्सेप्ट किया हुआ। ओपन कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर क्लोज है तो कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या हो जाएगा, ओपन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है दैट मीन्स ओपन सेट होगा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ए कॉम्प्लीमेंट है ना इसमें, ओ ए कॉम्प्लीमेंट इज, ठीक है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है टोपोलॉजी में, इसको बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इट बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। we get now we get a complement is a complement belongs to t। ये हमारे पास आ गया a complement belongs to t। ये किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ द टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ t, द डेफिनेशन ऑफ t। नाउ अगर ये a complement इसको बिलोंग कर रहा है, तो अगर टी को बिलोंग करता है तो ये किसके उस डेफिनेशन में देखो कोफाइनाइट स्पेस की डेफिनेशन, अगर ये टी को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट इज फाइनाइट। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी आ गया, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज अ फाइनाइट सेट। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज बिलोंग्स टू टी, that is a finite, it means A is a finite set। okay, A becomes इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि A का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई कंटेनिंग एक्स है T को बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है। दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज फाइनाइट, दैट इज फाइनाइट सेट। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, A, तो A is a finite set। Conversely अब हमने मान लेना कि A finite set है तो प्रूफ कर दे रहा है that is a closed। Now let A is a finite set। तो मान लेते हैं कि A finite set है। Now अगर हम खुद कंसिडर करते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होते वो भी तो यही आता है, तो इसको लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए, वो हमें पता है, हमने माना है दैट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, पहले हमने मान लिया लेट ए इज अ फाइनाइट सेट, इसको प्रूव करना है कि क्लोज्ड है। ए इज अ फाइनाइट सेट, ए को ए कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विच इज फाइनाइट, हमने माना है फाइनाइट सेट है। नाउ कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट सेट आ गया, तो ये किसमें हमारा अप्लाई किसमें, ये इसकी डेफिनेशन है कोफाइनाइट। ये कोई किसको बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी ए कॉम्प्लीमेंट किसे बिलोंग करेगा, टी को। ठीक है, ये देखो क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट तो वो टी को बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इसको बिलोंग करेगा, इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए की जगह पर ले लो इसको। ठीक है, तो ए की जगह पर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, इसको एक ए मान लिया हमने, जैसे इसमें ना कि इसको अगर तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो ए बिलोंग करता है टी को, क्या आता है इसमें, ए बिलोंग्स टू टी टोपोलॉजी। अब यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो बिलोंग कर रहा है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा ए की जगह पर, फाइनाइट आ गया उसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट टी को बिलोंग कर रहा है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट टी को बिलोंग कर रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ और बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है टी को, तो ये ओपन सेट हो गया। टोपोलॉजी में हमने किया ना, अगर टी मतलब इसको बिलोंग कर रहा है तो दैट इज ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन में कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट टी को बिलोंग करता है तो दैट इज ओपन सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो अगर कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो क्या आएगा, ए इज क्लोज्ड सेट विच इज टू प्रूव। हाँ जी, ये क्लियर है। ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी, कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी। नाउ डेफिनेशन ऑफ टी के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा था टी को, तो इसमें हमने क्या दिया, ये ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट सेट होगा, दैट मीन्स उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है,
दोबारा चाहिए कॉम्प्लीमेंट, ये तो ओपन सेट की डेफिनेशन थी ना, डेफिनेशन ऑफ मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी आ गया कोफाइनाइट स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर ये हमारा फाइनाइट सेट बन जाता है, फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए बच जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा फाइनाइट सेट। कन्वर्सली हमने प्रूव करना है, मान लेना है कि फाइनाइट सेट दिया हुआ है, हमने क्या प्रूव कर देना, क्लोज सेट है, इट इज़ अ क्लोज सेट। नाउ ए इज़ अ फाइनाइट सेट, अकॉर्डिंग टू अगर ए फाइनाइट सेट है तो हम खुद अपने आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या होता है ए के बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। नाउ ए इज़ अ फाइनाइट सेट क्योंकि हमने माना है, ठीक है। अगर फाइनाइट सेट है तो इस डेफिनेशन के मुताबिक वो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ए जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कोई भी सेट है अगर वो फाइनाइट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये तो हमने खुद माना था ना। अब जो इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट सेट, दैट मीन्स ए का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दैट इज बिलोंग्स टू टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टी के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा। तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट, ये क्या है ओपन सेट के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, अगर टी को बिलोंग करता है इट इज ओपन सेट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट हटा दो तो क्या बन जाएगा ए बच गया, ए इज द क्लोज सेट, इट इज टू प्रूव